or sorry, control flow statements and for and while loops, right? Hope everybody understood like why we are learning and what we learned, right? These two things. And after this, we started with the functions. And functions ka introduction, if I want to give you, we started using functions from day one, as in to print a control or print a hello world program. We have used a print function. So that is nothing but a inbuilt functions. And why inbuilt? Because to print something on the screen or on the console, there is some code written in the source or in the background. So that code will get executed by using that print keyword or print to parenthesis. So that is nothing but a inbuilt functions where the functions are already defined in the system and you are only calling that function depending upon your requirements. Okay. So so depending upon or with reference to that, we saw ki not only print or few more things such as odd, ASCII, POW, few more inbuilt functions we checked that time, right? And in continuation to that, we like discussed about the homework where you need to at least explore 5 functions each so that you can share among students and you will get more like knowledge or you will get exposure to most of the inbuilt functions, because the more inbuilt functions you know, then your task or some activities you can automate instead of writing a logic. So that's the use case. And so wanted to check how many of you have explored any inbuilt functions. Okay, so let's summarize. हमने conditional statements देखे, flow statements, while, for वगैरह. फिर उसके बाद हमने इनबिल्ट फंक्शन देखा था. जो इनबिल्ट फंक्शन हम यूज कर रहे हैं प्रिंट टाइप जो डे वन से उसी से रिलेटेड हमने कई फंक्शंस देखे थे और उनके एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन भी हमने देखा था कहाँ पे ये सारे फंक्शंस अवेलेबल है. और उसके रिगार्डिंग आपको होमवर्क दिया था कि एटलीस्ट ट्राई टू try to check any new functions. तर क्विकली कोणी कंप्लीट केलंय का और हैज एनीवन completed their homework? Yes, no. Yes, no. Not interested. Okay, not an issue. Like there is a issue definitely, but yes, you should be more concerned about it. और मतलब जो भी होमवर्क दिया गया है that completing is your responsibility, right? So please do it. If you know, that's well and good, but I don't think so everyone knows everything, all the inbuilt functions, so there is always scope to learn something new. So yes, that's a true, but बाकीच्यांनी थोडं सिरियसली घ्या. We can, कारण हे लेवल थोडे असे वाढत जाते डिफिकल्टी लेवल अँड
By that time you reach the list comprehension and higher order functions, तुम्हाला कळायला लागतं की it is going way at the top, as in म्हणजे तुमच्या लक्षात नाही येणार काय होतंय काय नाही, कारण हे सगळे बेसिक फंडामेंटल्सच आपण त्यात वापरणार आहे आणि ते वापरूनच आपल्याला सॉल्व्ह करायचे आहेत whatever the programming we are going to do. Okay, so it's very very important to understand all those things. Okay, so yes no काहीतरी सांगा. हा की एक दोन केलंय सर मी इनबिल्ड फंक्शनचं. ओके हा हा एक बुलचं केलंय, इवलचं केलं, मॅक्स एक दोन केलंय सर. हा काही इंटरेस्टिंग असं काही बघी कुठले जे की मोस्ट ऑफ अस डोंट नो असं काही. नाही सर. ओके सर हा not an issue. So let me share my screen. स्क्रीन दिसते का माझी? दिसते सर. ओके so just here we this is nothing but input sorry inbuilt functions. Just a second. One of the inbuilt function was the input के अलावा okay have input हमने cover किया है right, like how to get the input from the user. This enter your age plus 10. Okay yeah, this we have covered. और यहाँ पे हमने देखा भी था कि type cast करके the problem given was to remove the duplicate, right? आपने बोला था कि set convert करने से हो जाएगा, right? So but the answer is absolutely correct, but the issue is number order in which you have entered the number, as in 10 के बाद 24 आना चाहिए था, but that sequence is changed here. Okay, so chalo, so what we will do it here. There are few small programs. Just write a program to take employee ID and name, as in name and ID आपको receive करना है, or you need to get a name and ID from user. तो what you can do is मतलब user का employee ID और name लेना है, so simply you can use a input function. How I can do is employee ID I will create one as a variable equal to input enter employee ID. ये string है right, जो print के अंदर में लिखता था that is nothing but a string, so I can use that string again here. Input enter the employee ID, name or input enter your name. So what this two will create, these two will create a box here. म्हणजे मतलब मुझे इंटर करने के लिए वो ऑप्शंस देंगे एज ए यूजर, क्योंकि इनपुट फंक्शन है, एंड देन आई कैन print and store in the variable and I can print. So what you can do is click execute, see enter your employee ID. So employee ID, let's suppose 888 something 76888, then name Anil. So you can see it here. I can print or I can store this ID
76888 in the employee ID variable and name in the name variable, right? So this is a use case of input. But the thing about the input is whatever number you are printing here, if you closely observe the type of that number will be a text or a text type. So let's run here. Sorry. If I take a type of this variable and then execute, so number is this one and see the number 4563 is nothing but a string. String मतलब text format में ये number है. So input function always takes the string as by default data types. मतलब input function के अंदर जो भी जाएगा वो as a string consider करता है. It doesn't differentiate. मतलब number है तो number आना चाहिए, right? और float है तो float वगैरह all those things. So those things we should get it. Just a second. Let me connect my mouse. और ये string में why it's not important, because you cannot do any calculation on the string. मतलब if you want to find out any subtraction or power or division, mostly mathematical operations you cannot perform on the string, right? So that's why it is always advised कि आप जब भी input function लेते हो convert at that time only. If आप expect करते हो कि employee ID जो है वो number format में आना चाहिए, तो यहाँ पे integer का number format आप use कर सकते हो, right? इसके आगे क्योंकि int नाम का एक इनबिल्ट फंक्शन आपने सीखा है ऑलरेडी, और आपने देखा होगा इफ यू फॉलो द डॉक्यूमेंटेशन, वो क्या करता है कि जो भी स्ट्रिंग है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करता है int, राइट? सो जस्ट अ सेकेंड. There's one more program. With help of this we can expand this and utilize that int function. See, this is a function about where I need to take a rating from user. So user has visited a restaurant. मतलब user ने restaurant को visit किया है, फिर उसके बाद उसका feedback हमें लेना है, जो भी user है और जो भी customer है हमारे, right? तो what I can do, what all detail you need, मतलब आपको फीडबैक लेना है कस्टमर का, तो क्या क्या डिटेल आपको चाहिए? मोस्टली नेम, मोबाइल नंबर, अमाउंट, रेटिंग एंड कमेंट्स, राइट? सो यहाँ से मोबाइल नंबर कैन आई टेक इन अ स्ट्रिंग? नो, राइट? इट हैज टू बी इंटीजर बिकॉज 10 डिजिट इंटीजर. एंड देन अमाउंट मतलब कितना खर्चा किया है, हाउ मच ही हैज स्पेंट. सो डिपेंडिंग अपॉन दैट आई कैन गेट अ फीडबैक. मतलब बहुत ज्यादा पैसा खर्चा किया है, देन the review or his rating matters because he is a high value customer, right? So that's why we should take amount as integer. So how we have done is, आपको input function पता है, let's make a space here. ये देखिए इतना फंक्शन हम लेते थे ऊपर, whatever the roll number और name के लिए we have used this function here, मतलब this part. So this is nothing but a string, right? ये क्या करता है, str में input लेता है, whatever amount is, amount मान लीजिए 5000 is amount, so that takes into integer and then this string is passed on to the function called int. मतलब int नाम के एक फंक्शन को यहाँ पे पास किया है हमने, int. so ये क्या है, यूजर डिफाइंड सॉरी इनबिल्ट फंक्शन है, राइट? एंड देन इसका आउटपुट जो आएगा वो नथिंग बट नंबर फॉर्मेट में आएगा, int इंटीजर. सो लेट्स चेक. सो नेम इज इक्वल टू इनपुट, इंटर योर नेम. मोबाइल नंबर इज इक्वल टू, so enter your mobile number, but I will change the string to integer. So this is nothing but a typecasting because you are changing the data types here using inbuilt functions.
So that is called a typecasting. Then the amount, int, input, enter the amount you spent, right? And then rating has to be float. Why float? Because sometimes people give 3, 3.5, 3.25, right? Or 4.5 rating, or 4.7, 4.9, some ratings. So that rating is in the decimal point, or can be decimal point. So that's why I have converted it to a float. So if you are observing, हर एक डेटा टाइप का एक इनबिल्ट फंक्शन बनाया है. मतलब इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, लिस्ट, टपल, सेट एंड फ्रोजन सेट, इसके रिलेटेड हर एक इनबिल्ट फंक्शन भी बनाया गया है, सो दैट यू कैन डू अ टाइप कास्टिंग. मतलब एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में आप चेंज कर, मतलब यू शुड बी एबल टू चेंज. सो दैट्स व्हाई यू हैव अ फंक्शंस दिया गया है आपको. ओके, राइट? So let's so rating can be float, and then input, because please provide your rating between 1 to 5. And then comment, input, जो भी आपको comment है, मतलब क्या improve करना है, क्या नहीं है, right? So this is a very small program. So what I have done is यहाँ पे मैं print कर रहा हूँ, और let's print one by one, not an issue here. Let's enter the detail first, and then what we are interested is, मतलब हर एक वेरिएबल का डेटा टाइप I want to know. So what I can do is print name, copy and then paste, sorry, print type. You can see किसका चेक करना है, मोबाइल का, राइट? MOB मोबाइल नंबर, राइट? अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, एक बार एंटर करने से वी कैन सी व्हाट इज द डेटा टाइप. So name, let's take it Amit, okay, and then mobile number, any 10 digits. Enter the amount you spent. Suppose he has spent 5,000 rupees. Enter the rating is 4.5. उसको अच्छा लगा है पूरा रेस्टोरेंट में खा के. Things is service can be improved, right? So if I hit enter, देखिए यहाँ पे आउटपुट में क्या आ रहा है. आउटपुट, आई एम प्रिंटिंग अ नेम हियर, और नेम में प्रिंट कर रहा हूँ. ओके, तो नेम कैन बी इंटर्ड हियर, और नेम आपको प्रिंट यहाँ पे हो रहा है, अमित, राइट? एंड देन यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है उसका मैंने टाइप लिया है डायरेक्टली. सो दैट टाइप यू कैन से इंटीजर, क्योंकि हमने यहाँ पे इंट यूज किया है. सिमिलरली आई कैन पुट इट फॉर द अमाउंट एज वेल. ये देखिए अमाउंट का आप देख सकते हो. रन, ओके, sorry, I need to fill in all the details again. Enter amount spent 7697899. Sorry, इतना ज़्यादा भी नहीं. Rating can be 3.4. Enter. Things to improve, nothing, or enter. So you can see the class and amount. यहाँ पे amount का भी integer आ रहा है, right? Clear सबको? Yes, no, okay. So what you can do is मोबाइल नंबर का आप टाइप भी चेक, मतलब यू कैन टेक अ इनपुट, और मोबाइल नंबर का चेक कर सकते हो. बाय द वे मोबाइल नंबर 11 नंबर डाल दिया तो यू शुड गेट अ एरर. तो उसके लिए यू कैन राइट अ लॉजिक. लेंथ चेक करो मोबाइल नंबर का, हैज टू बी अ 10, राइट? तो 9 वगैरह है तो इट शुड ट्रिगर समथिंग. फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंडीशनल फ्लो स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं. इफ लेंथ मोबाइल नंबर is greater than, is not equal to 10, तो एरर दे दो, राइट?
कैन यू एबल टू यूज दैट फीचर, मतलब जो हमने सीखा था प्रीवियसली, जहाँ पे आई नीड टू चेक समथिंग एंड एग्जीक्यूट control flow statements, right? So I can check, I can control the flow of this statement जो मोबाइल नंबर में इंटर मतलब यूजर से ले रहा हूँ, इसके ऊपर ही मैं फॉर लूप लगाऊंगा एंड देन आई शुड चेक एवरी टाइम कि वो 10 डिजिट है कि नहीं, उसके बाद ही वो प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट होगा। इफ 10 डिजिट्स है तो, नहीं तो वो एरर देगा हर बार, राइट? सो दिस कैन बी अ यूज केस अपना जो हमने जो सीखा है प्रीवियसली। सो कैन यू गाइज एबल टू डू इट? कैन यू गाइज, मतलब आप लोग कर पाओगे क्या इसको? मतलब मुझे यहाँ पे, सॉरी, मुझे यहाँ पे, ओके, हु इज देयर? सो आई नीड टू check every time the user enters 10 digits or not. Okay, yes, no, or should we do it? मतलब मैं करके दिखाऊं क्या? If you want, should we do it now? How is it? Yes, no, क्योंकि this is the same application. See, the name of the customer is name, the amount, यहाँ पे amount check कर रहे हैं, हर एक कस्टमर का है, जो हमने इंटर किया है उसका डिटेल है, फिर यहाँ पे बाकी हम टाइप वगैरह चेक कर रहे हैं। द नेम ऑफ द कस्टमर इज अनिल एंड द टाइप ऑफ वेरिएबल इज string. The mobile number of the customer is ये and the type of the variable class is integer. So how we are achieving? We are achieving using f string, मतलब small f लिखा है f string, फिर उसके बाद हमने variables declare किया है, right? So what you can say it here, yes, no, any feedback? By the way, then addition, same, you can do the addition of two numbers. Addition is equal to number one plus number two, and number one आप user से ले रहे हो इस time, right? You are not taking it fix, मतलब fix नहीं कर रहे हो number one is equal to 40, number two is equal to 60, ऐसा कुछ आप user defined कर रहे हो उसको. So that can be one of the method or one of the application जहाँ पे आपको type casting करना पड़ता है to achieve calculation or to achieve any print functionality, right? Yes, no? By the way, आपका बैच बहुत थोड़ा सा यस सर। it's a bit difficult Yes, sir. to judge whether you people are really able to understand or not. म्हणजे तुम्हाला समजतंय की नाही हे थोडं कळायला वेळ लागतोय म्हणून, that's why. Okay, not an issue. So आपको सब लोगों को समझ में आ रहा है तो that's well and good. Yeah, this is actually जर इंटरव्ह्यूअरनी असं विचारलं to write a program, then you should use this approach, one of the approach. मतलब हर बार इनपुट ले लो यूजर से and then write a program. Okay, क्योंकि इनपुट, कंप्यूटेशन एंड आउटपुट, ऐसे 3 स्टेप्स में हमें इंटरव्यू का क्वेश्चन सॉल्व करना है। मतलब इंटरव्यूअर ने पूछा कि राइट प्रोग्राम फॉर दिस, और इसका कोड मुझे लिख के दिखाओ और इस पाइथन प्रोग्राम करके दिखाओ, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये 3 स्टेप्स आने चाहिए, इनपुट, कंप्यूटेशन नहीं तो कैलकुलेशन और आउटपुट। तो इनपुट में क्या लेना है आप ले सकते हो, आउटपुट में क्या दिखाना है वो लिख दो, फिर उसके बाद कंप्यूटेशन नहीं तो कैलकुलेशन स्टेप पे फिर आप थोड़ा टाइम ले सकते हो उस पे। ओके, सो इन दिस 3 स्टेप्स यू कैन राइट इट ऑन अ पेपर और इन अ नोटपैड जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एंड देन यू कैन अचीव द रिजल्ट्स, एज इन मतलब आपको लॉजिक बिल्ड करने के लिए it will be easy. Okay, so this is nothing but addition of two numbers, so I can take, let's take 34 and 88, enter. So the addition of two numbers 34 and 88 is 122. Clear? ये देखिए यहाँ पे f string दिया है मैंने, I have given f string here, right? The addition of two numbers, number one and number two. सबको पता है, चला अभी?
So next, this is one of the application, जैसे हमने इनबिल्ट फंक्शंस देखे, उसके ही थोड़ा एक्सटेंशन होके यूजर डिफाइंड फंक्शन भी हम बिल्ड कर सकते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शंस मतलब हम खुद का ही फंक्शन बनाएंगे और उसी फंक्शन को हम कॉल करेंगे। जैसे पाइथन में प्रिंट बनाया था ऑलरेडी, और वो प्रिंट फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं एवरी टाइम, राइट? प्रिंट हो, टाइप हो, यहाँ पे जो हम फंक्शंस यूज कर रहे हैं, टाइप, प्रिंट, इंट, इंटीजर आईएनटी वाला, फ्लोट, राइट? तो ये क्या है, इनका किसी ने ऑलरेडी लॉजिक बना के रखा है, आप लोग उसको सिर्फ कॉल कर रहे हो। बाय द वे, कॉल मतलब ये फंक्शन यहाँ पे यूज करना, दिस एक्टिविटी और दिस स्टेप इज नथिंग बट फंक्शन कॉलिंग, क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी किसी और ने डिफाइन किया है और वो सिर्फ आप यूज कर रहे हो आपके प्रोग्राम में, दैट इज कॉल्ड फंक्शन कॉल। तो आप यहाँ पे फंक्शन का कॉल दे रहे हो, राइट? सो सिमिलरली ये जो पूरा प्रोसेस है, फंक्शन डिफाइन करना एंड फंक्शन को कॉल करना, ये दोनों प्रोसेस हम खुद करने वाले हैं। So that's why the next step what we are going to learn is called user defined. Okay. So user defined functions. User defined मतलब user मतलब आप लोग वो define करोगे functions, okay? So सर एक मिनट, आप ऊपर लो, एक मिनट, एक मिनट, एक वो डॉट स्प्लिट, हाँ वहाँ पे वो डॉट स्प्लिट क्या है सर? एक मिनट। okay. So that's एक- by the way, has anyone checked ये by okay, ये क्या करता है कि split करता है आपके पूरे 3 numbers को, मतलब सम, ओके, ये जो कोड लिखा है मैंने, दिस इज कॉल्ड टपल, अनपैकिंग ऑफ टपल्स। मतलब जो हम पहले क्या करते थे, नंबर 1 एंड नंबर 2 ऐसे अलग अलग वेरिएबल्स लिख रहे हैं, राइट? देयर आर 2 वेरिएबल्स एंड 2 डिफरेंट लाइन ऑफ कोड्स, बट मैंने इसको ऑप्टिमाइज किया है। व्हाट आई हैव डन इज आई हैव रिटन इन अ वन लाइन नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा नंबर 3 एंड कॉपी, एंड इस what I can do is I can assign them directly। जैसे ये देखिए, नंबर 1 इंटीजर नंबर 1, नंबर 2 इंटीजर नंबर 2 एंड नंबर 3 इंटीजर नंबर 3। तो ये स्प्लिट क्या करता है, इट ब्रेक्स द, जो पूरा आपने, लेट्स रन दिस, मतलब आप 34 कॉमा 67 कॉमा 88 ऐसे 3 नंबर दिया है और ये बीच में कॉमा लगाया है, तो वो स्प्लिट क्या करता है, तो यहाँ पे एक ब्रेक कर देता है ये पूरे स्ट्रिंग को। सो दिस इज नथिंग बट स्ट्रिंग, राइट? ऐसे ये डेटा आएगा, तो इस डेटा को ऐसा ब्रेक करेगा और ये तीनों को एक 3 वेरिएबल में डिवाइड करेगा, कॉल्ड नंबर 1, नंबर 2, यहाँ पे नंबर 2 और ये नंबर 3। सो दिस इज नथिंग बट अ स्प्लिट फंक्शन। तो यहाँ पे स्प्लिट दे सकते हो, कॉमा है मतलब मान लीजिए मेरे 3 जो भी नंबर्स है कॉमा करके मैंने सेपरेट किए हैं, राइट? तो एज अ स्प्लिट आप कॉमा पे स्प्लिट कर सकते हो, मतलब कट करना उस स्ट्रिंग को। सो दिस इज नथिंग बट अ मेथड, इसको बोलते हैं। जब स्ट्रिंग के मैनिपुलेशन होगा स्ट्रिंग का, तो उस मैनिपुलेशन के टाइम पे हम यूज कर सकते हैं। दिस इज, विल सी कि स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, लाइक इट ब्रेक्स अ स्ट्रिंग, ओके? जो भी आपने वहां पे डिक्लेयर किया है स्प्लिट कहाँ करना है, उसके बेसिस पे वो स्ट्रिंग को कट कर देता है, फिर उस स्ट्रिंग को 3 स्ट्रिंग अलग अलग स्ट्रिंग बना देता है। यस, नो, लेट्स यस, हाँ समझा सर। ओके, ये देखिए, बाय द वे आई वांट यू टू सी द, ऑब्जर्व द आउटपुट। यहाँ पे क्या आ रहा है आउटपुट, मतलब इन तीनों का एडिशन मैंने किया है यहाँ पे, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, और इन तीनों का एडिशन इतना बड़ा हो सकता है क्या? क्योंकि वो स्ट्रिंग है ना। नहीं, तो क्या हुआ है वो प्रोग्राम, ऐसा वो क्यों आउटपुट दिखा रहा है? वो कॉन्केटिनेशन हो गया सर। हाँ, सो इट इज कॉन्कैटिनेटिंग, मतलब कंबाइन कर रहा है स्ट्रिंग को, सिर्फ अटैच कर रहा है एक के बाद एक। बाय द वे स्ट्रिंग है,
क्योंकि मैंने सिर्फ इनपुट लिखा है यहाँ पे input इनपुट, और ये बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, स्ट्रिंग, एज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप लेता है, राइट, इनपुट का, राइट। और इसी इनपुट को मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा टू मेक अ कैलकुलेशन, यस नो, मतलब एक्चुअल ऐड करना है मुझे, तो मुझे 3 नंबर का इनपुट लेना पड़ेगा, मतलब मैथमेटिकल एडिशन 34 प्लस 67 प्लस 88 ऐसा करना है। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन कंट्रोल, या आई रिमूव द, मतलब उनको कमेंट करके रखा था मैंने। सो नाउ इफ आई एग्जीक्यूट 34 कॉमा 67 कॉमा 88 एंड एंटर, अभी देखिए it is coming as 189, which is correct, right? Why? Because I need to convert all those numbers integer, right? ओके Clear? और ये सर। split क्या करता है, तो कट करता है ये, क्योंकि मैं एक साथ 3 नंबर ले रहा हूँ ना, so I need to cut somewhere and then give it to different variables. ओके हम मेथड्स में देखेंगे, एक्चुअली ये स्ट्रिंग क्या मेथड है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के टाइम पे we'll see that. Okay. Yes, no. सर, न्यू लाइन के लिए क्या करते हैं, एक और एक था। ओके, न्यू लाइन के लिए आपको क्या करना है, यस, लाइक जैसे एंड एल स्लैश एन वैसे पाइथन में। हाँ, स्लैश एन वर्क्स हियर, नॉट एन इशू, मतलब न्यू लाइन के लिए स्लैश एन प्रिंट करते ओके हैं, स्लैश टी इज फॉर द टैब, जो सेम जावा सी सी प्लस प्लस में वर्क होते हैं, दैट यू कैन यूज इट हियर, स्लैश एन के लिए न्यू लाइन, स्लैश टी के लिए टैब, ओके। ओके ओके So we can see the user defined function now. User defined मतलब यहाँ पे जो हमने print नाम का function call किया, this is called function call, क्योंकि इसका print के अंदर जो logic लिखा है, वो logic मैंने लिखा है क्या नहीं लिखा, कहीं पे भी मैंने print ऐसा लिखने से और print function call करने से क्या execute होगा, ये मैंने कहीं पे भी लिखा नहीं है, right? So what I can do is I need, if there is a condition, मतलब मान लीजिए this I need to use a def नाम का एक कीवर्ड, और यहाँ पे my function, ये नाम में कुछ भी रह सकता हूँ, ऐसा नहीं कि my function ही देना है, you can give any function। फिर उसके बाद 2 आर्ग्यूमेंट्स लेना है, arg1 arg2, ये वेरिएबल्स ही है, बट ये वेरिएबल्स मैं फंक्शन के अंदर लिख रहा हूँ, मतलब ये पैरेंथेसिस के अंदर लिख रहा हूँ, तो इसीलिए इनको पैरामीटर्स बोलेंगे और आर्ग्यूमेंट, और ये आर्ग्यूमेंट मुझे रिटर्न करेगा क्या, arg1 plus arg2, so this will return the function, right? So this is how we write a function actually, user defined function। तो user defined function का syntax ये रहता है, एक्चुअल में ऐसे लिखते हैं, so this is exact the syntax, def is a keyword which is important, और function का नाम, आपको कुछ नाम देना है तो वो, then parenthesis and then colon, solve the 1 2, मतलब you need to understand कि वहां पे def कीवर्ड चाहिए, def फंक्शन नेम चाहिए, पैरेंथेसिस चाहिए एंड ये कोलन चाहिए, कोलन के बाद ये इंडेंट ऑटोमेटिकली लेगा, राइट, मतलब यहाँ पे कुछ लॉजिक लिखोगे एंड यू विल गेट दिस ब्लैंक। फिर उसके बाद रिटर्न, मतलब कोई भी फंक्शन कॉल करता हूँ तो वो रिटर्न करता है कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स। सर, एक क्वेश्चन था कि वो डेफ आपने बोला था माय फंक्शन और ये आर्ग्यूमेंट वन आर्ग्यूमेंट टू, तो मुझे पूछना है कि जो जब भी हम नहीं कि डेफ यूज़ करते तब रिटर्न करना ज़रूरी है क्या, या ऐसे कुछ नहीं क्या हो सकता कि लाइक हम सिर्फ प्रिंट कर सकते हैं, रिटर्न की ज़रूरत ना पड़े। ये एक ओके, सो मतलब रिटर्न void। जो स्टेटमेंट यहाँ पे है दैट इज नॉट अ कंपल्सरी वन, यू कैन स्किप द रिटर्न, आप प्रिंट करना है तो प्रिंट कर दीजिए, मतलब आपके एरर। फंक्शन को कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है, राइट, तो आप रिटर्न स्टेटमेंट स्किप कर सकते हैं, यू कैन प्रिंट डायरेक्टली द रिजल्ट।
उसका हमें यूज सर देखेंगे। यस, void लिखने की कहीं ज़रूरत नहीं है क्या? हाँ, वाइड वगैरह कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और बाय डिफॉल्ट ये एक्चुअली आपने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा, क्योंकि सी और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा तो वो एरर देता है, राइट? आई गेस सी प्लस प्लस में। हाँ हाँ, हाँ, सी तो प्लस प्लस में। पाइथन में ऐसा कुछ नहीं होता, रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा तो वो बाय डिफॉल्ट नन एनो एनी नाम का एक कीवर्ड रिटर्न करता है। देखेंगे हम उसका एक्चुअल यूज केस, बट अंडरस्टैंड कि ये दिस इज नथिंग बट हाउ वी राइट अ फंक्शन। ये डेफ कीवर्ड, ये रिटर्न कीवर्ड, फिर ये माय फंक्शन उसका नाम, और ये दो आर्ग्यूमेंट्स। ओके, दिस इज हाउ वी राइट द एनी प्रोग्राम। सो रन। तो इसमें से क्या होगा, ये इसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। आई एम डिफाइनिंग द फंक्शन, राइट? डेफिनेशन ऑफ न्यू फंक्शन, और ये हो गया फंक्शन बॉडी। फिर उसके बाद आई कैन कॉल दिस फंक्शन एज वेल, और इसको फंक्शन कॉल कैसे करेंगे? जैसे मैं प्रिंट सिर्फ लिखता था, तो ये माय फंक्शन भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा, माय फंक्शन यहाँ पे लिख दो, फिर पैरेंथेसिस के अंदर दो आर्ग्यूमेंट पास करो। मतलब यू कैन पास 57 कॉमा 88। इफ आई एग्जीक्यूट, विल इट एग्जीक्यूट? 145 आ रहा है, राइट? ये देखिए, जैसे प्रिंट फंक्शन काम करता था हेलो, तो ये जो यहाँ पे आप भेजते हो कोड के अंदर, देन इट विल एग्जीक्यूट। सो सिमिलरली माय फंक्शन क्या करता है कि ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है और उसका आउटपुट देता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आपने लिखा माइनस, एंड देन रन एंड एग्जीक्यूट, -31 हो गया। सो ये एग्जीक्यूट करता है वो जो भी फंक्शंस दिए गए हैं। सर मतलब अगर हमने यहाँ पे नंबर डाले तो लाइक वो इंटीजर में सीधा अपने आप कन्वर्ट करेगा ना यहाँ पे लाइक? यस, और अगर आर्ग्यूमेंट यू डोंट हैव टू डिफाइन, मतलब ओके, आर्ग्यूमेंट का डेटा टाइप बोल रहे हो ना आप? हाँ हाँ हाँ, हाँ, that you don't have to define. Directly it will convert. और एंड अगर स्ट्रिंग होगा तो वो हमें यहाँ से Let's check. Let's check. यहाँ पे मैंने string pass कर दिया. First of all, let's check. क्या बोल रहा है? My function missing one कॉमा। required positional argument called argument 2. So it is even not able. Sorry, यहाँ पे एक double हो गया है. Again, still I have a error. Okay, this is the right one. So what it's saying is unsupported operand type फॉर माइनस। माइनस होगा तो स्ट्रिंग वर्क नहीं होगा डायरेक्टली, क्योंकि आप स्ट्रिंग भेज रहे हो। प्लस करो, फिर प्लस से वर्क होगा, क्योंकि कॉन्केटिनेट हो गया वो। आप जो भेजोगे डेटा टाइप, वही डेटा टाइप फंक्शन में लेगा। फंक्शन डज नॉट चेंज एनीथिंग। ओके, ओके ओके ओके। यू डोंट इवन हैव टू डिफाइन द डेटा टाइप हियर, कि मतलब मैं क्या भेजना चाहता हूँ क्या नहीं है, आपको इतना डिफाइन नहीं करना है। पाइथन विल अंडरस्टैंड ऑन इट्स ओन। सिमिलरली मान लीजिए मैंने सम ऑफ थ्री नंबर्स का एक प्रोग्राम लिखा, मतलब DEF ये कीवर्ड, क्योंकि पाइथन सम नाम का फंक्शन जो है, मान लीजिए तीन वर्क नहीं होता, तो तीन के लिए मैंने लिख दिया कैसे, सम ऑफ थ्री नंबर्स, फिर नंबर वन कॉमा नंबर टू कॉमा नंबर थ्री, क्योंकि ये क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया, राइट? फिर उसके बाद कोलन, कोलन के बाद मैं इंटर मारूंगा तो इंडेंट अपने आप आता है। इंडेंट समझ में आता है? ये देखिए स्पेस, यहाँ से मेरा स्टार्ट हो रहा है लिखना, so दैट इज कॉल्ड इंडेंट, जो ब्लैंक है, राइट? देन इफ एक्सिक्यूट सम ऑफ थ्री नंबर्स, ये देखिए यहाँ पे मैं रिटर्न स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखा, क्योंकि आपने बोला था कि ये पूरा स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा। आई हैव एग्जीक्यूटेड डायरेक्ट प्रिंट, प्रिंट और एफ स्ट्रिंग द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज num1 num2 एंड num3, और उनका एडिशन मैंने किया है यहाँ पे डायरेक्टली विद इन द स्ट्रिंग। इफ आई एग्जीक्यूट, what is happening, if I execute, and then this is called a function definition। ये क्या हो गया, फंक्शन डेफिनेशन हो गया, राइट?
मतलब यहाँ पे डिफाइन किया मैंने, अभी इसको मैं कॉल करूंगा। What I can do is I can copy and I can paste here the same name. फिर उसके बाद 2 आर्ग्यूमेंट भेज, सॉरी 3 है यहाँ पे, तो लेट्स पुट अ 3 आर्ग्यूमेंट, देन रन। देखिए सम ऑफ 3 नंबर इज 6, 3 2 1, राइट। सो मान लीजिए यहाँ पे मैंने रिटर्न नहीं लिखा है, फिर भी एग्जीक्यूट हो रहा है, ओके। बट व्हाट इफ यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट नहीं देता, बट मैंने यहाँ पे ये फंक्शन को कॉल करके इसका आपको चेक करना था कि ये फंक्शन क्या आउटपुट कर रहा है। यहाँ पे एग्जीक्यूट तो हो गया प्रिंट, बट इसका आउटपुट क्या आ रहा है, दैट ऑल्सो वी कैन चेक। वो कैसे चेक करना है? सो व्हाट आई कैन डू इज लेट्स प्रिंट दिस स्टेटमेंट, और ये रन प्रिंट हो रहा है, मतलब सम ऑफ 3 फंक्शंस। ये देखिए इट कैन गिव मी एन, एक पहले तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया द सम ऑफ नंबर, उसके बाद ये प्रिंट, मतलब ये फंक्शन मैंने प्रिंट कर दिया, फिर उसका आउटपुट आ गया नन। मतलब बाय डिफॉल्ट ये नन एग्जीक्यूट रिटर्न करता है इफ आई डोंट राइट अ रिटर्न स्टेटमेंट, फंक्शन जो भी है। सो फिर सर उसे प्रिंट कैसे करना है, कि प्रिंट कैसे करते हैं फिर? ये देखिए ना, प्रिंट प्रिंट। नहीं 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 नहीं, अगर वो नन आउटपुट दे रहा है हमें और हमें नहीं हाँ है कि वैल्यू 6, तो हम हाँ, उसे प्रिंट कैसे करें? लाइक हमें ये वैल्यूज लाने हैं जो भी हमने इनपुट उसे दिया है, लाइक दैट बिना नो, रिटर्न। यू ओनली कॉल द फंक्शन। आप उस फंक्शन को प्रिंट मत करो, हाँ फंक्शन सर। कॉल करो, फंक्शन के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट है ऑलरेडी, हाँ 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 हाँ। राइट। क्योंकि मैंने आपको हाँ। दिखाने के लिए प्रिंट किया, किसी ओके। एक ही हाँ। जगह पे आपको प्रिंट करना है। ये देखिए, हम्म। आई हाँ सर। अंडरस्टूड व्हाट यू वांट टू से। सी व्हाट हाँ आई कैन डू इज आई कैन टेक वन मोर वेरिएबल कॉल्ड हाँ सम टू, और सम टू में मैं ये रिजल्ट, इस रिजल्ट को स्टोर कर सकता हूँ, और ये रिजल्ट प्रिंट की जगह रिटर्न करना पड़ेगा मुझे, ये तीनों। तो हम सर हम लाइक वो जो सम टू में अभी जो भी रिजल्ट आया है, तो हम इसके हाँ नीचे सीधा प्रिंट सम टू नहीं क्या कर सकते? कर दो, देखिए क्या होता है। प्रिंट सम टू, सॉरी, क्या आउटपुट आया? सेम। इट हैज एग्जीक्यूटेड द कोड, एग्जीक्यूटेड द फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन तो आपने कॉल किया, राइट। ओके देखिए, लेट्स अंडरस्टैंड द फ्लो। देखिए आपने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट सम टू किया, सम टू में क्या है, सम टू में ये इंफॉर्मेशन है कॉल्ड सम ऑफ 3 नंबर्स 1 2 3, बट सम ऑफ 3 नंबर्स ये क्या है ना, फंक्शन कॉल है, और इसका एक्चुअल फंक्शन कहाँ पे है, तो ये एक्चुअल फंक्शन ऊपर जाएगा यहाँ पे, सम ऑफ सर 3 नंबर, राइट। सर पर ऐसे आना चाहिए ना, लाइक सम पहले हमने इसकी जो भी वैल्यूज आएगी, लाइक इसका आंसर 6 आया, तो 6 हाँ सम ऑफ 2 में स्टोर होना चाहिए, और जो हम प्रिंट सम ऑफ 2 है, तो ओके, मतलब यहाँ पे 6 आना चाहिए, तो मतलब मुझे आपको ऐसे। फिर अ, मतलब इस फंक्शन का आउटपुट आपको नंबर चाहिए, सम, राइट। हाँ लाइक तो जो भी ये फिर एक 10 काम कीजिए सम ना, ऑफ। यहाँ पे प्रिंट मत कीजिए, व्हाट यू डू इट हियर इज, आप तो सर इधर मतलब। हम्म। एग्जीक्यूट भी कर रहे हो, हम्म। सो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू डू इज कॉपी, और ये पूरे स्टेटमेंट को निकाल के आई कैन पुट अ रिटर्न, रिटर्न मतलब ये वापस देगा मुझे समथिंग। इफ आई रन, रन, 6 आ गया आउटपुट। ओके, लेट्स ओके ओके। अंडरस्टैंड, लेट्स द फ्लो। ये देखिए, सम ऑफ 3 नंबर कहीं तो लिखा है मैंने, कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे, राइट, सम ऑफ 3, फिर इसमें से 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, और यहाँ पे आएगा 3, 3। राइट। क्योंकि मैंने 1 2 3 भेजा है, नंबर 1 में 1 भेजा है, नंबर 2 में 2 भेजा है, नंबर 3 में 3 भेजा है। देखिए 1 2 3, राइट। ये इस इधर जाएगा, ये 2 इधर जाएगा, और ये 3 इधर जाएगा, राइट। एक बार ये तीनों अंदर गए, फिर उसके बाद ये नीचे आएंगे, नीचे का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे, सॉरी, नीचे का ब्लॉक मतलब ये, इसमें क्या आएगा, 1 2 3 का
प्लस होगा, ये टोटल करके रिटर्न कर देगा। रिटर्न मतलब वापस इधर आएगा, फिर इधर से इसको असाइन होगा, राइट, इधर जो भी ये वापस भेजा है इसने कैलकुलेशन करके। और लेट्स, ये थोड़ा शॉर्ट डायरेक्टली मेथड हो गया। लेट्स आपको और एडिशन इज इक्वल टू 1 2 3, फिर रिटर्न करो। क्या रिटर्न करोगे? एडिशन। अभी रन करो, यू विल गेट अ सेम आउटपुट। मतलब आपने 1 2 3 भेजा है यहाँ पे, राइट, फिर 1 2 3 का कैलकुलेशन हो गया, कितना आ गया इसका आंसर? 6। ये 6 कहाँ पे आ गया? एडिशन। और उस एडिशन को मैंने रिटर्न भेज दिया। रिटर्न भेजने के बाद वो कहाँ पे आएगा? सम 2 में आएगा ना, क्योंकि इसका आंसर कितना आ रहा है? 6। और ये क्या है? सम 2 इज इक्वल टू 6, और प्रिंट क्या कर रहा हूँ? सम 2। सो दैट्स व्हाई आई गॉट आउटपुट। ये जो आउटपुट आ रहा है नीचे 6 है, राइट। सबको फ्लो समझ में आ रहा है? जब भी मैं फंक्शन कॉल करता हूँ तो क्या होता है? येस सर, हे इझी वाटतंय त्याच्यापेक्षा. ओके, ओके, गुड। तो इसका ही वर्जन है एडिशनल, मान लीजिए। और चेक, जब मैं रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखता, इफ आई डोंट राइट दिस, तो पायथन बाय डिफॉल्ट नन, नन पास करते. म्हणजे काय? समजा तुम्ही रिटर्न काही लिहिलंच नाही, आपने सिर्फ कैलकुलेशन कर दिया, वैसे ही छोड़ दिया, कुछ रिटर्न कहीं नहीं किया, राइट। तो लेट्स रन। ये देखिए नन आ रहा है, क्योंकि आपने कुछ भेजा ही नहीं ना। सिंपल एग्जांपल, आपने किसी को बुलाया, मतलब कोणाला तरी बोलवलं, चिंटू, सोनू, मोनू. चिंटू हाक मारला तर तो हो म्हणतो ना. हो म्हणजे काय? ते रिटर्न आहे, मतलब ही आंसर समथिंग, दैट इज कॉल्ड रिटर्न. और उसने कुछ आंसर ही नहीं दिया, तो क्या आएगा आपको? ब्लैंक, साइलेंट आएगा ना, दैट इज नथिंग बट अ नन. आपको रिस्पॉन्स चाहिए तो यू नीड टू रिटर्न समथिंग फ्रॉम द प्रोग्राम, राइट? यस, नो? हाँ सर. सर बट हे अजून एक होतं की हाँ. जस्ट आता जसं की CPP मध्ये असतं की आता इंट वॉइड असेल आणि त्या आतमध्ये फंक्शन असेल, काय असेल तो, हम्म. आणि त्यानंतर त्याला रिटर्न करायची काही गरज नाही पडत. तो हम्म. आपल्याला बरोबर जेव्हा पण आपण त्याला कॉल करतो ना, तर आपल्याला जे त्याच्यात असेल, जे फंक्शन असेल त्याच्यात हम्म. प्रिंट, जे स्टेटमेंट असेल ते डायरेक्ट प्रिंट करून देतं. हम्म. तर मग मला हे विचारायचं, हे एक एक लाईन एक्झिक्यूट करते त्यामुळे नन देतं, कारण हा VS कोडमध्ये हा सेम कोड रन केला हम्म. तर आपल्याला उत्तर दुसरं भेटेल का, असं एक विचारायचं आहे. प्रिंटच भेटेल का? म्हणजे जे नाही, काय पण ननच भेटेल. तुम्ही कोणते एडिटर वापरा, VS कोड और जुपिटर नोटबुक, बाय डिफॉल्ट यूजर डिफाइंड फंक्शन रिटर्न्स नन, जर इफ यू डोंट मेन्शन अ रिटर्न स्टेटमेंट. ओके सर. आणि सर आपल्याला त्यांना डिफॉल्ट व्हॅल्यू द्यायची असेल तर num1 इक्वल डिफॉल्ट, टू 0. डिफॉल्ट हा, मतलब num1 इक्वल टू 0, num2 इक्वल टू 0. जर आपल्याला, आपण समजा हे 3चं यस, फंक्शन यस, आहे, हे बघा, हे तर बघा. कॅन यू सी तुमचं एक्झाम्पल? वी हॅव हां. आहे, आपल्याला थोडं वेळ घ्या, हळूहळू खाऊत सगळं. ओके. आहेत, आपण बघणार आहे सगळं, पण आय वॉन्ट यू टू टेक अ स्टेप बाय स्टेप. पहिलं तर फंक्शन एक्झिक्युशन झालं. हाऊ, फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन एक्झिक्युशन शिका. फंक्शन डेफिनेशन काय कळलं? फंक्शन कॉल काय कळलं तुम्हाला? कळलं, राईट? देन विल गो विथ द फंक्शन रिटर्न काय करते. म्हणजे जर रिटर्न काहीतरी, म्हणजे चिंटूला हाक मारलं, चिंटूने हो म्हणला, तर प्रिंट हो होईल. चिंटूने तुम्हाला भाव नाही दिलं तर नन येऊन जाईल, राईट? क्लिअर? हे क्लिअर झालं सगळ्यांना? हो सर. ओके. देन नेक्स्ट स्टेप, समजा तुम्हाला चिंटूला और सोनू आणि मोनू दोघ जण आहेत, दोघांना हाक मारायचा आहे, राईट? बाय डिफॉल्ट यू नीड टू, in our case by default I need to send a 3 number. Similarly सोनू, मोनू, चिंटू तिघांना हाक मारायचं. जर 3 मधल्या फक्त दोघांनाच हाक मारलं तुम्ही, तर इट विल नॉट वर्क. म्हणजे 3 जणांचं काम आहे, त्यातल्या फक्त दोघांनाच बोलवलं, तर तसं वर्क नाही होत. व्हाय? लेट्स ट्राय दिस. मैं 3 को डिलीट कर देता हूं यहाँ से और सिर्फ 2 लोगों को भेज देता हूं.
क्या होगा? इट सेज वन आर्ग्युमेंट इज मिसिंग कॉल्ड नंबर 3. का? कारण हा जो फंक्शन तुम्ही बनवलाय सम ऑफ 3 नंबर्स और जे काय नंबर असतील तिथं आर्ग्युमेंट किती पास केलेत? 3. तर ह्या फंक्शनला बोलवायला, फंक्शन कॉल करायला 3 जण लागतातच. असं आहे. कळलं? सर नंबर 3 काही गार्बेज काही व्हॅल्यू घेत नाही का आणि ते ऍड करून आपल्याला काहीच दाखवत नाही का डायरेक्टच हा, एरर थ्रो करतो ओके. असं आहे? पण काय होतं ना, इन रिअल वर्ल्ड इट इज नॉट ऑलवेज फिजिबल की जेवढे आर्ग्युमेंट आहेत तेवढे पासच करतील लोक. कारण तुम्ही भले सांगताय की फीडबॅक फॉर्म वगैरे भरलाय ना तुम्ही कंपनीत किंवा कुठेतरी, ऑप्शनल फील्ड असतात, तुम्ही 2-4 हम्म. टिक करता, बाकीचे सगळे ओके 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 ब्लँक सोडून पुढे जाता फॉर्म वगैरे भरताना, राईट? हा. तर हाऊ टू हँडल सच सिच्युएशन इज, आपल्याकडे त्याला म्हणतात, बाय द इंडेंटेशन कळालं ना? इंडेंटेशन मतलब ये स्पेस इज नथिंग बट इंडेंट. एंड पाइथन में इसका मीनिंग अलग है. मतलब पाइथन एज अ इंडेंटेड लैंग्वेज, मतलब आपको यहाँ पे जो ये स्पेस दिख रहा है ना, इसका पर्पज है, ये मैंने स्पेस निकाल दिया तो इसका एरर आ जाएगा, क्योंकि स्पेस देना जरूरी है कोलन के बाद. ओके, तो दैट इज नथिंग बट इंडेंट, और पाइथन इज अ इंडेंटेड लैंग्वेज. सो दैट्स हाउ शिफ्ट टैब नहीं तो टैब देके आप इंडेंट दे सकते हो. दैट्स नॉट अ बिग, बाय द वे वो बाय डिफॉल्ट लेता ही है, बट आपको अलग से देना है तो यू कैन पुट अ टैब, यू कैन प्रेस अ टैब. ओके, दैट्स अबाउट इंडेंट, बट विल फोकस ऑन आवर मेन टॉपिक. मान लीजिए आपने ओके 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 करके ऑप्शनल फील्ड आगे बढ़ा दिया, बट आपने जो फंक्शन कॉल किया है उसको 3 कंपलसरी लगता है. तो क्या करना है, जब भी आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हो, राइट, ये क्या है, डीएफ मतलब फंक्शन डेफिनेशन है, तो फंक्शन डेफिनेशन के टाइम पे ही डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट पास करो. डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट मतलब x इज इक्वल टू 0. भाई तुझे मैंने ऐड नंबर्स को मैंने बुलाया और उसको कुछ पास नहीं किया, तो ये डिफॉल्ट ले लीजिए, 0 ले लो, ऐसा आप बता रहे हो यहाँ पे, और उसका रिजल्ट आप आउटपुट में पा रहे हो. ये देखिए, कॉपी रिजल्ट एंड देन आई हैव टू रिटर्न एज वेल ना, नहीं तो वो नन रिटर्न देगा, रिटर्न रिजल्ट. ओके, क्लियर? अभी ये क्या हो गया, फंक्शन डेफिनेशन. लेट्स कॉल दिस नंबर. ये देखिए फंक्शन कॉलिंग. बाय द फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन का नाम एंड देन बाय पासिंग आर्ग्यूमेंट. बट एज मुझे 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए थे, बट मैंने, मान लीजिए, चलो लेट्स गो विद 2 आर्ग्यूमेंट. इसको चाहिए थे x एंड y. ये देखिए x चाहिए एंड y चाहिए, तो मैंने x भी दे दिया एंड y भी दे दिया. फिर उसके बाद आउटपुट देखिए क्या आता है. आ गया 9, क्योंकि x प्लस वाई कर रहा है रिजल्ट, और रिजल्ट रिटर्न कर रहा है, राइट, 9. मान लीजिए पहले मुझे एरर आया था, यहाँ पे देख सकते हो आपने, मैंने एक आर्ग्यूमेंट मिस किया था, बट यहाँ पे एरर नहीं आएगा, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट क्या लेता है वो देखिए आप, 4 ले रहा है. मतलब x की जगह 4 तो आपने बोल दिया है यहाँ पे, ये देखिए, बट y के लिए उसने 0 ले लिया. आपने पास नहीं किया है तो 0 ले लिया. फिर उसने क्या किया, 4 प्लस 0 इज 4 आउटपुट. मान लीजिए, राइट, आपने आर्ग्यूमेंट एंड इफ यू डोंट इवन पास 4, तो क्या आउटपुट आएगा, 0, क्योंकि x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, आपने तो ऑलरेडी बोल दिया है. दिस इज कॉल्ड अ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स. ओके, यस, नो? पण सर ऑलरेडी तिथे x इक्वल्स टू 0 होतं, मग 4 कसं आलं होतं? नाही, तुम्ही जर पास केलं तर ते x इज इक्वल टू 4 घेतं, पण तुम्ही पास नाही केलं तर x इज इक्वल टू 0 घेतं. ओके. याला म्हणतात डिफॉल्ट आर्ग्युमेंट. डिफॉल्ट, डिफॉल्ट म्हणजे तुम्ही काहीच नाही पास केलं तर डिफॉल्ट आन्सर देणार. ओके, ओके सर. क्लिअर सगळ्यांना? चलो, सो सेम इथं तुम्ही बघू शकता, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10, मी काही डिफॉल्ट देऊ शकतो, असं नाही की फक्त तेच द्यायला लागतं. क्लिअर? जैसे छोटा एक एग्जांपल है, लोन कैलकुलेटर, अमाउंट इज इक्वल टू 1000, ईएमआई अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 2 3 4. नॉट अ बिग डील, बट तुम्ही एक्सप्लोर करू शकता की
how I have executed this code. Clear सगळ्यांना? सेम एक्झाम्पल आपण जे बघितलं तेच. इफ यू आर नॉट कम्फर्टेबल विल एक्सप्लेन, नॉट अ इश्यू. सर सगळं ठीक आहे पण ते डॉट फॉर्मॅट एक सांगा वापस. ओके, हे डॉट डॉट फॉर्मॅट का? ओके, डॉट फॉर्मॅट काय करतं, जर इथे जे कर्ली ब्रॅकेट आहेत ना, कर्ली ब्रॅकेट मध्ये EMI इन्सर्ट करतं फक्त इथे. मग ते इन्सर्ट होण्यासाठी डॉट फॉर्मॅट नावाचं मेथड आपण वापरतो. दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रिंगचे मेथड. आपण हे झाल्यावरती म्हणजे युजर डिफाईन्ड फंक्शन झाल्यावरती डेटा टाइप्स इन डिटेल बघणार आहे. तिथं डॉट फॉर्मॅट नावाचं एक फंक्शन असतं जे फक्त स्ट्रिंग वरती वर्क होतं. आणि त्याचा अर्थ असा आहे की जिथं जिथं कर्ली ब्रॅकेट असेल तिथं तिथं तो व्हेरिएबल इन्सर्ट करायचा EMI चा. कारण मी डॉट फॉर्मॅट म्हणून लिहिलंय. आणि याच स्टेटमेंटला आपण एफ स्ट्रिंग ऍज अ सिंपल भाषेत लिहितो. हे बघा, तेच लिहिलंय, EMI इज डॉलर, EMI इज डॉलर, आणि कर्ली ब्रॅकेटच्या इथं डायरेक्टली EMI टाकून दिला मी. डॉट फॉर्मॅट असं लिहिलंच नाही. ओके, ओके ओके. फक्त ते सेम फंक्शनॅलिटी सेम आहे, बट वे ऑफ रायटिंग द कोड इज डिफरंट. सर पुन्हा एकदा रिपीट करा ना. ओके, इथं आपण आधी कसं प्रिंट करायचो, फक्त द EMI इज डॉलर आणि हे कोलन द्यायचं. समजा मला हा व्हेरिएबल प्रिंट करायचा आहे. व्हेरिएबल तर प्रिंट करण्यासाठी व्हेरिएबलची व्हॅल्यू पाहिजे ना, ऍक्च्युअल व्हॅल्यू मला प्रिंट करायची आहे. पण ही व्हॅल्यू आहे या व्हेरिएबल मध्ये. तर ती व्हॅल्यू प्रिंट करण्यासाठी मी काय करणार, डॉट फॉर्मॅट आणि हा जो व्हेरिएबल आहे इथं लिहिणार. याच्याने काय होतं, EMI मध्ये काय आहे, समजा EMI मध्ये 1000 ही व्हॅल्यू आहे. EMI हा व्हेरिएबल आहे, बाय द वे. हे व्हेरिएबल आठवत आहे ना, आणि हे याचं नाव EMI आहे, आणि इथे काहीतरी मग व्हॅल्यू असेल आज. ही व्हॅल्यू हो. मला प्रिंट करायची आहे. तर मग डॉट फॉर्मॅट आणि हे व्हेरिएबलचं नाव लिहिलं तर डायरेक्ट व्हॅल्यू प्रिंट होते. म्हणजे याच्या आत जे आहे ते इथे, राईट, याच्या आत जे आहे ते प्रिंट होईल. पण एवढं सगळं करण्याच्या ऐवजी एफ स्ट्रिंग लिहा ना तुम्ही. द EMI इज डॉलर आणि कर्ली ब्रॅकेट आहे तसे द्या. त्याच्यात डायरेक्ट EMI असं लिहिलं तर तो हा जो व्हेरिएबल आहे त्या व्हेरिएबल मध्ये जी व्हॅल्यू होती, राईट, ते व्हॅल्यू ते पिक करतं EMI. एफ पण याचं कंडिशन याचं की ते एफ लावायला लागेल, स्मॉल एफ. दिस इज कॉल्ड एफ स्ट्रिंग, मतलब इसको एफ स्ट्रिंग बोलते हैं. ओके, ओके सर. सर अजून एक तुम्ही असं लिहू शकतात का, मला एक बघायचं आहे की ते प्रिंट शेवटचं प्रिंट नाही का एफ वालं, त्याच्या खाली प्रिंट दी EMI इज आणि मग ते डॉलर, सेमिकॉलन, हां सेमिकॉलन नंतर, हा हा डॉलर नंतर सेमिकॉलन नंतर त्याच्या बाहेर कर्ली ब्रॅकेट आणि EMI हा सेमच. सेमीकोलन, राईट, रन. सॉरी सेमिकॉलनच आलं. ते डबल इन्व्हर्टेड कॉमा नाही का तिथं क्लोज करायचे. ओके, यू नीड टू क्लोज इट हिअर ओनली, राईट. म्हणजे हां इथंच क्लोज करायचं तुम्हाला. हां असं आणि वर्क नाही होत ना स्ट्रिंग डायरेक्टली. ठीक आहे सर. मग जे हे आहेत का ब्रॅकेट्स आहेत का ते हा, स्ट्रिंग मध्ये एकदा टाकून बघा. नाही आणि जर EMI बाहेर असं EMI तुम्हाला, आपण सेपरेट ठेवू शकतो ना, असं एक विचारायचं आहे. हा म्हणजे चालेल, त्याच्याने काहीच फरक नाही पडणार. म्हणजे तुम्ही म्हणताय लाईक दिस. नाही सर तसं नाही. म्हणजे कर्ली कोलन ब्रॅकेट देऊन बोलतोय तो. नाही ओके, सर. ओके, गॉट एक इट. दिस यू आर सेइंग. हा सर असंच. येस, हे पण तुम्ही एक्झिक्यूट करू शकता. देर आर डिफरंट मेथड्स हाऊ यू वॉन्ट टू प्रिंट. सर मग असं फायदा काय आला की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कशाने तर काही फरक नाही पडणार, मग आपण असं काय ऍक्च्युली करतो. टाइम कॉम्प्लेक्सिटीचा फरक नाही पडत, पण प्रॉब्लेम काय होतो ना, इफ यू वॉन्ट टू प्रिंट मल्टिपल व्हेरिएबल्स तर कसं कॉमा करून कुठे प्रिंट करणार, इथे अजून एक कॉमा असं प्रिंट करणार व्हेरिएबल. आणि प्रिंट जरी केलं तर लोकेशन काय, म्हणजे द नंबर इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 अँड सम इज असं प्रिंट करायचं आहे मला. म्हणजे हे बघा, या फॉर्मॅट मध्ये प्रिंट करायचं आहे. द नेम ऑफ द कस्टमर इज अनिल. बाय द हे व्हेरिएबल आहे कॉल्ड नेम, आणि
द टाइप ऑफ व्हेरिएबल इज कॉल्ड टाइप नेम. हे मला पूर्ण तुम्ही कसं एक्झिक्यूट करून दाखवणार विथ युअर रेग्युलर मेथड, कॉमा वगैरे जे तुम्ही वापरता ना त्याच्याने. कळलं? त्याच्यासाठी कळलं. तुम्हाला कॉन्कॅट करायला लागेल. मग हा प्रिंट हे प्लस ते कॉन्कॅट करायचं. त्याच्यापेक्षा सिम्पल इज एफ स्ट्रिंग वापरा. मोस्ट ऑफ युअर प्रॉब्लेम्स विल बी सॉल्व्ड. ओके ओके. क्लिअर. ओके. So thank you. Thanks a lot for your time. We'll conclude our today's lecture here. So I want you to practice user defined functions. 3-4 steps जे सांगितलेत ना, रिटर्न केल्यावरती, रिटर्न लिहिल्यावरती, विथ आर्ग्युमेंट, विदाउट आर्ग्युमेंट, डिफॉल्ट आर्ग्युमेंट, राईट, हे सगळं चेक करून बघा एकदा वर्क होतंय की नाही तुमच्यात. सर तुम्ही फ्रीलान्सिंग करतात? हॅलो. That is bit we can answer it separately. In what context you are asking, that also. सर फॉर लाइक डेटा एनालिस्ट जो भी